Yes, good morning, children. Welcome back. Dear children, due to some assignment, today's work, I am again with my YouTube channel. So please subscribe it and like it. Now we discuss the problem asked by you. First question 9th, asked by Palak Tiwari in morning session. But I am unable to discuss it due to the class is over. Now question number 9th first. Please read it, Anjali. If the third and ninth term of the AP is 4 and minus 8 respectively, Third term and ninth term of the AP is 4 and minus 8, minus 8 respectively. which term of the AP is 0? हमको कौन सा टर्म AP होगा? an equal to 0, then n find करना है. This is the problem. Third term is 4. Third term, that is a plus 2d equal to 4, and ninth term is minus 8. Ninth term, that is a plus 8d equal to minus 8. We solve these two equations. With the help of these two, we have to find a and d. इन दोनों को सॉल्व करिए लीनियर इक्वेशन जैसे. सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ए और डी की वैल्यू निकालिए. जल्दी करिए, ए और डी की वैल्यू निकालिए. Subtract the equations and you find the value of a and d. Subtract करने के लिए यहाँ जो साइन है इनको इनसर्किल कर लेना, चेंज करना. ये माइनस, ये प्लस. ए कैंसिल. 2d माइनस 8d, दैट इज माइनस 6d. 4 प्लस 8, दैट इज 12. d इक्वल टू 12 अपॉन माइनस 6, दैट इज माइनस 2. d का वैल्यू माइनस 2 आया. अब ये वैल्यू किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करिए, देन यू गेट द वैल्यू ऑफ a. So either from first or from second, find out the value of a. From first, a plus 2d, d का वैल्यू माइनस 2 आया 4. a minus 4 equal to 4, that is a equal to 4 plus 4, that is 8. a 8 आ गया, d minus 2 आ गया. अभी सर इट इज गिवन दैट nth term is 0. nth term means a plus n minus 1 into d equal to 0. इसमें a और d का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, n आ जाएगा, वही आंसर होगा. चलिए करिए, डू इट. Substitute the value of a and d in this expression. What is the value of a? 8. What is the value of d? Minus 2. Break the bracket. 8 minus 2n, minus minus का प्रोडक्ट प्लस 2 इक्वल टू 0. सो 10 इक्वल टू 2n को शिफ्ट कर दिया. 0 प्लस 2n, दैट इज 2n. देयरफॉर 10 अपॉन 2 इक्वल टू n, दैट इज n इक्वल टू 5. दैट मीन्स फिफ्थ टर्म इज 0. ये था पलक तिवारी 9th क्वेश्चन. अंडरस्टैंड? इवनिंग में आपने नहीं पूछा है, मॉर्निंग में आपने पूछा था. आई रिमेंबर, दैट्स व्हाई आई एम सॉल्विंग द फर्स्ट 9th क्वेश्चन. देन अदिति और किसने भेजा? 12th question. अदिति, श्रेयांशी एंड समवन एज. साफ करो. Yes, sir. So whenever you have the problem of arithmetic progression, dear children, you remember you have to find the value of a and d.
then you are able to find each and everything asked in the given problem. Got it? So Aditi and Shreyanshi was asked the question number 12th. किसी एक बच्चे ने और लिखा था, कौन था वो? शिवरे ने क्या किसी ने लिखा था? हाँ, Two APs have the same common difference. The difference between their hundredth term is 100. first AP, second AP. There are two APs, their common difference is same. कॉमन डिफरेंस इन दोनों का सेम है. से इट्स कॉमन डिफरेंस इज डी एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ सेकेंड एपी इज ऑल्सो डी. इसका भी कॉमन डिफरेंस डी से ही डिनोट कर दिया. यस, The difference between their hundredth term is फर्स्ट 100. टर्म, इसका फर्स्ट टर्म मैंने ले लिया A1, इसका फर्स्ट टर्म ले लिया मैंने A2. फर्स्ट टर्म नहीं गिवन है. अब डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म, पहले वाली एपी का 100 टर्म होगा A100 इक्वल टू A प्लस 99D, A1 प्लस 99D, क्योंकि इसका फर्स्ट टर्म A1 है. और दूसरे वाले एपी का A-100, इसका 100 टर्म होगा A2 प्लस 99D, क्योंकि सेकेंड एपी का हमने फर्स्ट टर्म A2 लिया है. अब आप देखें डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म, क्या दिया है जी? 100 टर्म का डिफरेंस 100. गिवन, इट इज 100. व्हाट इज दी 100 टर्म ऑफ फर्स्ट एपी? A1 प्लस 99D and A dash, that is A2 plus 99D equal to 100. Then A1 plus 99D minus A2 minus 99D equal to 100. 99D cancel, that is A1 minus A2 equal to 100. The difference between their first term is 100. पहले क्या फाइंड करना था? What is the difference between their 1000 terms? पहले मैंने फर्स्ट टर्म निकाल लिया जी. इतना लिखें आप, फिर 1000 टर्म का निकालते हैं. थोड़ा जल्दी करें जी. So common difference is same. First term of the first AP A1, second AP का first term A2, दोनों का 100 टर्म का फार्मूला लिखा. फर्स्ट का 100 टर्म आया A1 प्लस 99D, सेकेंड का 100 टर्म आया A2 प्लस 99D. देयर डिफरेंस इज 100. वी सब्स्टिट्यूट देयर वैल्यूज. 99D कैंसिल. डिफरेंस बिटवीन देयर फर्स्ट टर्म A1 माइनस A2 इज 100 आ गया. अब नाउ अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन यू वांट टू फाइंड देयर डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स. फर्स्ट एपी का जो 1000 टर्म होगा A1000, वो होगा A1 प्लस 999D. क्लियर? सेकेंड एपी का जो 1000 टर्म होगा वो क्या होगा? 1000 टर्म ऑफ A डैश 1000, इट इज A2 प्लस 999D. Now you want to find then their difference. A1000 minus A dash 1000, दोनों की 1000 टर्म में डिफरेंस चाहिए है. So A1000 is A1 plus 999D minus ब्रैकेट में A2 plus 999D2. D, sorry, common difference is same.
So it is A1 plus 909D minus A2 minus 999D. 999 cancel. That is remaining is A1 minus A2. And what is the value of A1 minus A2? It is 100. So the difference between the 1000 term of the given AP will be 100. Clear? Then you want to another thing you want to find here. Suppose they ask what is the difference between their lakhs terms. Lakhs term का आएगा तब भी यही आना है 100. They ask what is the difference between their 10,000 term, तब भी यही आएगा A1 minus A2 100 ही आएगा. This is not depends on the number of terms. किसी भी terms का difference 100 ही होगा. Clear? क्योंकि common difference same है. 12th question over हो गया. अदिति, श्रेयांशी, अंडरस्टैंड? कमेंट बॉक्स में ऐसे और नो लिखना है सबको, कमेंट्स में लिखना है. ओवर, जल्दी लिखें. नाउ क्वेश्चन नंबर 13 किसी ने पूछ रखा है. कौन है वो? जी मॉर्निंग वाली क्लास में अदिति तिवारी. अभी भी पूछा है किसी बच्चे ने. वो देखो मोबाइल में किसने पूछा है. अच्छा ठीक है. सम स्टूडेंट पोज देयर डाउट. दे आस्क क्वेश्चन नंबर 13. रीड इट. How many three-digit numbers are divisible by 7? How many three-digit numbers are divisible by 7? You know the smallest three-digit number is 100. 100 को 7 से डिवाइड करो. 7 बन जा 7 1 0 7 2 जा 14. 7 बन जा 7 3 आ गया जी. अभी सर 11 7 जा 7 बन जा 7 यहाँ 3 आएगा. सॉरी 3 7 4 जा 28 2 एक्स्ट्रा है सर. 14 7 या 98. यदि मेरे पास यहाँ पर 7 माइनस 2 5 होता, दैट इज 105 होता. मुझे कैसे पता पड़ा? 7 में से 2 माइनस किया, 5 और चाहिए था तो मैंने 5 ऐड कर दिया 100 में. मीन्स 105 पहला नंबर होगा जो 7 से डिवाइड होगा 3 डिजिट का. सो 105 इज द फर्स्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 7. 3 डिजिट का चाहिए ना, इसलिए 3 डिजिट लिया. अब नेक्स्ट क्या आएगा? 7 ऐड कर दीजिए 112. फिर नेक्स्ट आएगा 119. 7 ऐड करते जाना है. फिर 7 ऐड करिए 126. फिर 7 ऐड करिए 133. एंड लास्ट लाने के लिए, लास्ट कौन होगा ये जानने के लिए, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट? 999. 7 से डिवाइड करो. 7 बन जा 7 2 7 4 जा 28 1 7 2 जा 14 5. 999 में 5 एक्स्ट्रा हो रहा है, मतलब 999 से 5 माइनस करिए. मीन्स लास्ट होगा 994. 994 वो नंबर होगा जो लास्ट 3 डिजिट नंबर होगा. उसके बाद वाला जो नंबर होगा वो 1001 होगा. बट हमें 4 डिजिट का नहीं चाहिए, 3 डिजिट का चाहिए. सो दीज आर दी नंबर 3 डिजिट्स numbers are divisible by 7 r. ये आपको कैलकुलेट करना होगा. What is the first term? 105. What is D? 112 minus 105, that is 7. What is the last term? That is nth term. Nth term is 994.
हाउ मेनी टर्म्स, ये फाइंड करने के लिए nth टर्म का फॉर्मूला लगाइए। nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डे, इट इज गिवन 994। nth टर्म गिवन है ना। अब a और d का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। व्हाट इज a? 105 n माइनस 1 इंटू d मी 7 इक्वल टू 994। इसको सॉल्व करिए, n का वैल्यू आएगा, वो आंसर होगा। चलिए करिए। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर दीजिए। You remember, थ्री डिजिट नंबर्स आपको काउंट करना पड़ेंगे, कैलकुलेट करना पड़ेंगे। दे आर डिविजिबल बाई 7। 105, 112, 119, लास्ट 994 कैसे आया, वो मैंने कैसे कैलकुलेट कर लिया। यू अंडरस्टैंड? अब इस ब्रैकेट को ब्रेक करो। सॉल्व जिनने कर लिया वो चेक करेंगे, जिनसे नहीं मिला वो देख लेंगे, जिनसे नहीं आया है। 7n, 105 से 7 माइनस हुआ, प्लस 98 इक्वल टू 994। देन 7n इक्वल टू 994 माइनस 98। 994 से 94 माइनस करो, 900। 900 से 4 माइनस करो, 896। 7n इक्वल टू, therefore n इक्वल टू 896 डिवाइडेड बाई 7, 1 या 7, 19 आएगा। 7 2 जा 14, 5 7 8 जा 51, 28 आंसर आएगा। चेक करें। सो देयर आर 128 थ्री डिजिट नंबर्स, दे आर डिविजिबल बाई 7। चेक द रिजल्ट। Understand? Such type question is the most important question in arithmetic progression, जिसमें आपको डिजिट्स काउंट करने होंगे। कितने डिजिट्स ऐसे हैं जो डिविजिबल हैं? 13th के बाद कौन सा जी? 15। क्वेश्चन नंबर 15th, read it. For what value of n are the nth terms of two APs? 63, 65, 67. 63, 65, 67 And 3, 10, 17. and 3, 10, 17. Equal. What value of n? The nth term. कौन सा टर्म? The nth terms of the two APs are equal. इसका फर्स्ट टर्म है 63, कॉमन डिफरेंस होगा 65 माइनस 63, दैट इज 2। इसका nth टर्म होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फर्स्ट एपी है। nth टर्म इज 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, 63 प्लस 2n माइनस 2, that is 61 plus 2n. This is the nth term of the first AP. Clear? फर्स्ट AP का हम लोगों ने nth term निकाल दिया।
अभी सेकेंड एपी जो दी थी उसकी फर्स्ट टर्म थी क्या सर 3, इसका कॉमन डिफरेंस क्या था 10 - 3 दैट इज 7, इसकी nth टर्म a' लिखा मैंने, इसकी nth टर्म होगी a1 प्लस n-1 इंटू d1. What is the first term of this second AP? 3 n-1 d1 that is 7. 3 plus 7n minus 7 that is 7n minus 4 a dash n. According to your question, it is given for what value of n these nth term are equal. Given nth term of the first AP equal to nth term of the second AP, an equal to a dash n. So 61 plus 2n equal to 7n minus 4. इसको सॉल्व कर लीजिए, n का वैल्यू आएगा वो आंसर होगा. इसको सॉल्व करिए. (61) ट्रांसपोजिशन किया प्लस 4, 7n माइनस 2n, n को मैं राइट में ले गया. 65 इक्वल टू 5n, देयरफॉर 65 अपॉन 5 इक्वल टू n. इट मीन्स दैट n इक्वल टू 13. चेक करिए आंसर. फॉर 13th टर्म देयर 13 टर्म इज सेम. दोनों एपी में जो 13 नंबर का टर्म आएगा वो सेम आएगा. फिफ्टींथ के बाद कौन सा दीदी? जल्दी लिखें इसको, जल्दी करें. 17 हो गया. Then there is an important question. I think it is 16 or 17. 17. 16 तो नहीं पूछा किसी ने. Question number 17. Read it. Find the 20th term from the last term of the AP. 3, 8, 13 and 253. 253. ध्यान देना. 13 के पहले आया 8 के पहले आया 3. मीन्स यदि मैं देखूं तो कॉमन डिफरेंस 5 हो रहा है. मतलब आप बता सकते हैं कि 253 के पहले कौन आया होगा. 5 माइनस करिए 248. 248 के पहले कौन आया होगा. 243 के पहले कौन आया होगा. 238. ये कैसे काउंट किया ये समझ आया. मैंने 5 माइनस करके आ गया. जैसे यहाँ 13, 8, 3. अब मुझे फ्रॉम लास्ट निकालना है ना. क्या चाहिए. फाइंड The 20th term from the last term. सो फ्रॉम लास्ट दैट इज एपी को रिवर्स ऑर्डर में लिख लो. पहले 253 लिख दो, फिर 248 लिख दो, फिर 243 लिख दो, फिर 238 लिख दो, टिल 13, 8, 3. रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया. फ्रॉम लास्ट निकालना था. अब व्हाट इज दी ए.
253 हो गया जी इसके लिए। व्हाट इज डी? 248 से 253 माइनस करो, क्या आएगा? -5। हमको कौन सा टर्म निकालना है? 20th फ्रॉम लास्ट, दैट इज फ्रॉम दिस एंड। सो a प्लस 20 माइनस 1 दैट इज 19d। इसमें a और d का वैल्यू रखो, कैलकुलेट करो और आंसर चेक करो, यू विल गेट आंसर। Substitute the value of a and d. सब्स्टिट्यूट किया, ए का वैल्यू 253, 19 इंटू -5, 253 माइनस 95, 253 से 95 माइनस करिए 158। चेक करें आंसर। This is the easiest way by which you solve the problem number 17, and this is important also. So you remember the solution of this. Any other problem? No problem. Still you solve. ऐसे बच्चे जिनने solve ना किया हो, solve करिएगा। फिर भी यदि डाउट आता है, we have day after tomorrow, कल के बाद भी हमारी 2 क्लासेस हैं। उन क्लासेस के लिए आप कल क्वेश्चंस करके, यदि नहीं आते हैं तो इसी के कमेंट बॉक्स में लिख देना, यूट्यूब के वीडियो के, अदरवाइज अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर पोस्ट कर देना। सॉल्व करना है। यदि कोई और क्वेश्चन नहीं आता है, यू मे आस्क एट एनी टाइम। नाउ वी हैव द फॉर्मूला फॉर सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP। प्रूफ मैंने वीडियो में दिखाया था, नो नीड टू रिपीट द प्रूफ। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। किसी भी AP के n टर्म का सम फाइंड करने के लिए पहला फॉर्मूला होगा S इक्वल टू n/2 2a प्लस n minus 1 into d, where a is the first term, d is the common difference। एक तो ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है। सेकेंड फॉर्मूला s इक्वल टू n/2 a प्लस, इस 2a को a प्लस a लिख सकते हैं। एंड व्हाट इज दिस? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी को हम लिख सकते हैं nth टर्म a प्लस an मीन्स nth टर्म। प्रीवियस एक्सरसाइज में आपने फार्मूला लगाया, जिसमें फाइनल नंबर मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म होती हैं, तो सम टाइम nth टर्म को लास्ट टर्म बोलते हैं। लास्ट टर्म को l से डिनोट करते हैं, l स्टैंड्स फॉर लास्ट टर्म। सो सेम फॉर्मूला इज रिटन एज n/2 इंटू a प्लस l। इस फॉर्म में भी यूज करते हैं, आइदर यूज दिस और दिस और दिस, ऑल आर सेम। तीनों से आंसर आएगा। क्लियर? राइट डाउन दीज 3 formulas to solve the exercise 5.3. फॉर्मूले लिखिए। अगला जो टेस्ट होगा उसमें मैं फॉर्मूले का टेस्ट लूंगा। लीनियर इक्वेशन से लगाकर
AP तक जितने फॉर्मूले आपने लर्न किए हैं उनकी लिस्ट बनाइए। उन फॉर्मूले का टेस्ट होने जा रहा है आपका, मैं पहले से बता दे रहा हूं। Now you have the exercise 5.3. In this exercise, we have the questions of sum. फर्स्ट का फर्स्ट रीड करो अंजलि। फाइंड दी सम ऑफ Sum of the following APs. हाँ। First, 2, 7, 12 to 10 terms, अप टू up to 12 terms, up to 10 terms. 10 terms. 2, 7, 12 till to 10 टर्म्स। हमको इस एपी की 10 टर्म्स का सम फाइंड करना है। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? 2। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस? 7 minus 2, that is 5 and 10। अब सम निकालना है तो s इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी में a का वैल्यू 2, d का 5, n का 10 सब्स्टिट्यूट करिए और सॉल्व करिए, यू विल गेट आंसर। इसको सॉल्व करो। टेन अपॉन 2, 2 into a, n minus 1, that is 10 minus 1, d 5, 2 5 जा 10, 5 into 4 plus 9 into 5, that is 45. So 5 into 49, that is 245. So how you will get the sum? You understand? फर्स्ट का सेकेंड, फर्स्ट का थर्ड, सारी करिए। स्टार्ट करिए। फर्स्ट का सेकेंड, फर्स्ट का थर्ड, कोई एक करके देख लीजिए। आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करोगे। कोई डाउट आते हैं आप क्लास के बाद, जब आपकी सारी क्लासेस हो जाएं, बैठ के सॉल्व करना। कोई डाउट आते हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर डालना, जिससे मैं नेक्स्ट क्लास में आपको डिस्कस कर पाऊँ। मोस्ट प्रॉबली आपकी नेक्स्ट क्लास मीट पर ही होगी, जिसमें मैं आपसे पूछ लूँगा। पहले से आप क्वेश्चन निकाल के रखना। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखो। फर्स्ट के तो सारे आ जाएंगे, सेकेंड का क्वेश्चन रीड करो। Find the sums given below. 7 plus फर्स्ट वाला रीड कर रही हो क्या? yes sir. 7 प्लस 10 whole 1 by 2 plus 14 plus dash plus 84. दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर चिल्ड्रन। 7 plus 10 whole 1 by 2, that is 7 plus 10 to the 20 plus 1, that is
21/2 plus 14 till 84. What is the first term? 7. What is the common difference? 21/2 minus 7 upon 1. LCM लीजिए, 21 minus 14 upon 2, that is 7/2. What is the nth term? अब यहाँ पर क्या है, n नहीं दिया है, ये याद रखना. nth term given है, last term that is nth term is given, n नहीं मालूम है. सो nth term का फॉर्मूला लगाओगे, a plus n minus 1 into d, a plus n minus 1 into d, that is ये क्या गिवन है, 84. ये nth टर्म इक्वल टू 84 को मैंने ले लिया. अब इसमें व्हाट इज ए, 7, n माइनस 1 इंटू डी, दैट इज 7/2 इक्वल टू 84. इसको सॉल्व करोगे तो पहले n आएगा, इसको सॉल्व करिए, n निकालिए. n माइनस 1 इंटू 7/2 इक्वल टू 84 माइनस 7, 7 को ट्रांसपोजिशन कर दी. देन n माइनस 1 इंटू 7/2 इक्वल टू 77. इसको सॉल्व करोगे तो n आ जाएगा जी. मैं रब कर लूं ऊपर. देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? n माइनस 1 इक्वल टू 77 इंटू 2/7. मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, 7/2 का 2/7 कि कैंसिल हो गया 11 टाइम्स, दैट इज n माइनस 1 इक्वल टू 22. n माइनस 1 इक्वल टू 22, दैट इज n इक्वल टू 22 प्लस 1, दैट इज. सेकेंड के सारे क्वेश्चंस में पहले तुम्हें n फाइंड करना होगा. अब आप Sn निकालिए, Sn इक्वल टू n/2 a प्लस लास्ट टर्म लगा सकते हैं, इजी पड़ेगा क्योंकि इसमें लास्ट टर्म nth टर्म दी हुई है. आप फर्स्ट वाला फॉर्मूला भी लगा देंगे तब भी चलेगा. व्हाट इज दी n? कितना आया n? 23. व्हाट इज फर्स्ट टर्म डियर? फर्स्ट टर्म क्या है? 7. व्हाट इज दी लास्ट टर्म? 84. सो 23/2 इंटू 91. प्रोडक्ट कर लें, 23 1 जा 23, 2 कैरी, 9 3 जा 27, 2 9 2 जा 18 प्लस 2 20, 2093/2. चेक करो रिजल्ट. 1046.5. क्या फ्रैक्शन में दिया है, मिक्स फ्रैक्शन में. 1046 and 1/2. This is the sum. So how will you solve the question number 2 onward? Please try to solve the remaining questions of 5.3. So for today's class, this is the last question. Please solve the remaining one and try to solve them. Take care. Stay home. Jai Hind, Jai Bharat.